Hello, ninth class students. Once again, I welcome you all in this online session of classes. This is the last chapter, that is chapter number 1 of our syllabus, that is number systems. According to our syllabus, which we are doing, this is the last chapter, which is going to be last chapter, chapter number 1, number systems. The very first exercise is exercise 1.1. See, number system students, in the online class also we have studied the various types of numbers like natural numbers, whole numbers. These you have studied in your junior classes also, in your lower classes also. The important type of number which we are going to study in this chapter is rational numbers, integers, like that. So rational numbers you have studied also. Let me tell you, rational numbers are the number in the form of P upon Q, which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q, that is denominator, should not be equal to 0. मतलब जो अपॉन की टर्म्स में, जैसे फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर आप जिनको रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स. ठीक है, वेयर Q should not be equals to 0. So the very first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q? So the solution is, as we know, a rational number is in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Similarly, 0 we can write as, or 0 can be written as like 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, because you divide 0 by any number, you get the answer as 0. So as we have represented this 0 like 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 in the terms of P upon Q, where Q is not equal to 0, we can say yes, 0 is a rational number. And the next question is, find 6 rational numbers between 3 and 4. ठीक है, आप लोगों ने क्या करने हैं? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सो द प्रोसीजर इज, एज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपसे कोई पूछा जाए हाउ मेनी रेशनल नंबर्स विल बी देयर, सो यू कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी देयर बिटवीन एनी टू नंबर्स. सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, द क्वेश्चन विच इज second question, so multiply and divide by 7, that is any number greater than 6. अगर आप लोगों ने 6 नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो आप लोगों ने 6 से बिगर नंबर, जैसे 7, 8, 9 इस टाइप से, 7 से आप लोगों ने क्या कर देना, 8, 9 से भी कर सकते हैं एज योर विश. आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है 3 और 4 को. ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 3 को 7 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो आंसर आ गया 21/7. सिमिलरली 4 ऑल्सो वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड ऑल्सो बाय 7, सो इट्स 28/7. तो अब आप लोगों ने 21/7 और 28/7 के बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से वो जाएंगे. 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 22, डिनोमिनेटर क्या है 7, सो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. अगर आप लोगों को 7 फाइंड करने थे तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 फाइंड करने थे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द गिवन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स. उससे एक बिगर नंबर से आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स बिटवीन दोज टू नंबर्स. Question 3 is similar question as question number 2, so that's your homework. So the next exercise is exercise 1.3. 1.2 has been deleted by HP Board of Education for this current session, so we will not deal that exercise. So the next exercise in our course is exercise 1.3. So the very first question is, write the following numbers, or write the following fractions in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. जो आप लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन जो क्वेश्चन में गिवन है, जो फ्रैक्शंस गिवन है, उनको आप लोगों ने क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, और कौन सा वो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी आप लोग को बताना है. तो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज 36/100. ठीक है, सी दिस द फ्रैक्शन, सो जस्ट डिवाइड 36/100, यू विल गेट 0.36. ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा? 0.36. अब देखिए स्टूडेंट्स, दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होता है कि अगर उसका जो वैल्यू है वो डिफाइंड है, मतलब डेफिनेट है. ठीक है, कई बार होता है ना डिवाइड करते हुए कि वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि 1 अपॉन या 10/3,
ठीक है। तो 10/3 क्या होता है 0.333333 का, दैट विल बी अप टू सो ऑन कंटिन्यूस, ठीक है, दैट विल बी कंटिन्यूस 0.3333 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो वो जो कंटिन्यूस रहते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 0.36, तो यहीं तक इसकी वैल्यू आगे नहीं है, ठीक है। दिस इज डिफाइंड अप टू 0.36 ओनली, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और इसमें कंटिन्यू चले रहते हैं नंबर्स वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सो 0.36 विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डिवाइड करके आपको ऐसे शो भी करना है। थर्ड पार्ट इज आई हैव डन नॉट ऑल द पार्ट्स, आई हैव जस्ट डन 3 पार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज 4/1/8, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, 8 4 से 32 प्लस 1 33/8, सो दैट इज 33/8। सो डिवाइड कीजिए 33 को 8 से, यू विल व्हेन डिवाइड इट इज 4.125। तो ये यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है फिर वही स्टार्टिंग से आ रहा है जो आपने जहाँ से आपने डिवाइड करना शुरू किया था, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। लेकिन 4.125 since the remainder is 0, so therefore 4/1/8 which is equals to 33/8 is 4.125, which is a terminating decimal expansion. Now the fourth part, which is 3/13, so we have to divide 3 by 13, we will get 13, 3 को 13 से अगर ऑप्शंस डिवाइड करेंगे, so we have just done this division, but see at one step when we were doing dividing this, when we had just multiplied 13 by 9 we got 117, then at that step we got remainder as 3। हम लोगों ने डिवाइड कहाँ से करना शुरू किया था 3 से, और एक स्टेप ऐसा आया है डिवाइड करते हुए कि आपके पास फिर से रिमाइंडर 3 ही आ गया। अगर आप फिर से करेंगे तो दिस होल डिवीजन विल कंटिन्यू। सो ये जो है ये पूरे नंबर से फिर से क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना, चलते रहेंगे, कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो उस टाइप से ये क्या है जो नंबर है, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, 0.230769 के ऊपर एक बार लगा दीजिए। बार का मतलब है दिस नंबर्स विल अगेन रिपीट, फिर से यही सीरीज आएगी 230769, फिर से 230769। सो बार का मतलब दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिकर करेंगे, रिकर करेंगे मतलब रिपीट करेंगे, रिकरिंग या रिपीटिंग इट्स सेम, recurring decimal expansion or non-terminating decimal expansion. And the remaining parts of this question will be your homework. Complete this question. Next, third question, you have not to do second question. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. So this is one decimal expansion is given to you, 0.6 bar. 6 bar का मतलब कि that it will be continuing 6 से 6 like so on. सो इसको कैसे करना है, अगर आप लोगों ने P अपॉन Q की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करना है, इसको सबसे पहले आप किसके इक्वल एज्यूम कर लीजिए, x के इक्वल। दिस इज द प्रोसीजर, x के इक्वल एज्यूम कर लीजिए 0.6 बार को, ठीक है। देन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.6 बार, इट इज 0.666 डैश डैश डैश, मतलब दिस विल कंटिन्यू। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, एक नंबर आगे चला जाएगा, 6.666 अप टू सो ऑन आ जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में 1 from 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो 10x माइनस x विल गिव यू 9x एंड 6.666 माइनस 0.666 अप टू सो ऑन विल गिव यू 6, ठीक है। 6.6666 अप टू सो ऑन माइनस 0.666 अप टू सो ऑन, माइनस करके देखिए यू विल गेट 6, ठीक है। सो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर 6/9 दैट इज 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। देखो 0.6 बार क्या था x, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/3। सो दैट इज द रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डन ओनली वन पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स आर योर होमवर्क अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, so you have to do only those questions, parts you have to do all, but you have to do only those questions in your notebook which I have done in this video, right? And the parts which I am saying in your homework, those you have to do in your homework, like question number 4, 5, 6 you have not to do in your fair notebooks, neither you have to practice that. So question number 7 is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Non-terminating का मतलब क्या होता है कि those should continue, ठीक है, कंटिन्यू करने चाहिए। Non-recurring का मतलब क्या है कि वो क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग नंबर्स को ही आने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। सो ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। तो ये नंबर्स कौन सा इरेशनल नंबर्स हम जनरली वो कहते हैं जैसे √2, क्योंकि इसमें देखिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है वो होते हैं रेशनल नंबर्स, जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करते उनको हम इरेशनल नंबर्स काउंट करते हैं, ठीक है। लाइक √2, √3, √5, √7 ये सारे क्या हो जाएंगे
irrational numbers with non-terminating and non-recurring decimal expansion. ठीक है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142 अप टू सो ऑन, रूट 3 होता है 1.73205 एंड अप टू सो ऑन, रूट 7 कितना होता है 2.64575 एंड अप टू सो ऑन. Now question number 8. Find three different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11. देखिए पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आप लोग को इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में. ठीक है, सो जस्ट डिवाइड 5/7, दैट इज 0.714285 अप टू सो ऑन. 9/11, 9 को 11 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 0.818181 अप टू सो ऑन. So three irrational numbers that lie between 0.714285 and 0.818181 are, ठीक है, इस टाइप के आप नंबर्स कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, 0.37307300 इस टाइप के कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हैं which will be irrational numbers. Okay, and the irrational numbers we very well know that which cannot be written in the form of P upon Q form. Now since this exercise or these questions are over, now I have drawn one very important, this table or this bar chart. ठीक है, sorry, it's chart I have shown to explain you that what is the decimal expansion. Decimal expansion is of two types, terminating and non-terminating. Terminating जो खत्म हो जाते हैं स्टेप आके, आगे नहीं रिपीट होती है, फिर आगे नहीं कंटिन्यू चलते. जो कंटिन्यू चलते हैं दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दे कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर्स. एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं. सो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेशनल नंबर्स. लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स. जैसे हम लोगों ने यहाँ भी कहा था, देखो कि और इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो सिमिलरली नॉन रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस होंगे वो कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स. So in the next video, we will do some more questions of this chapter. We will be doing next exercises. So complete this exercise 1.1 and 1.3, the questions we have done in this video. Thank you and have a nice day.